पैसे के साथ रिलेशनशिप ऐसा है जैसे बोट का रिलेशनशिप पानी के साथ, अगर पानी बहुत कम होगा तो बोट तैर नहीं पाएगी, और पानी अगर गलत जगह होगा तो बोट डूब जाएगी। Roots are not where you're from. Roots are where you grow them, and that becomes belonging for you. और एक एन बोगार्ड नाम के थिएटर डायरेक्टर हैं न्यूयॉर्क में, उनकी कंपनी है सिटी कंपनी, SITI। वो लोग जो काम कर रहे थे वो मुझे बहुत पसंद था। But the point is, मैं एक 5 साल के बच्चे को कैसे बताऊं, 2 लोग जो प्यार करते थे एक दूसरे से अब वो स्ट्रेंजर्स बन चुके हैं। How does that happen? ओडिन थिएटर डेनमार्क में, तो उन्होंने एक शो बनाया है जिसमें 7 लैंग्वेजेस यूज करते हैं एक्टर्स। वो ऐसी 7 लैंग्वेजेस हैं जो दुनिया में कोई नहीं बोलता। Vishnu was amazed. Like I think he had tears in his eyes because no one had ever done that to him. That understanding a language that because we just assume, अच्छा आप तेलुगु बोलते हो, मुझे नहीं आती तो मैं नहीं समझ सकता। वो सब साउंड से समझ आ जाता है। और वो ऐसे है ना, स्वाइप कर देते हैं, स्वाइप कर दिया, फिर वो एक मैसेज आता है पीछे, आपके अकाउंट में 2305 रुपए बचे हैं। And my mother, she often told me, she said, you've never valued money. And मुझे ऐसा लगता था, अरे आपने you're telling me to be materialistic. I'm not telling you to be materialistic. I'm telling you to take care of, how you want to live. Hello and welcome to this episode of One Story with Akta Pawar. Today I have fellow Rajasthani here with me, Akshay Gandhi. He is a theatre actor, director and storyteller. And Akshay has done about 20 different theatre shows across the world, out of which Maya is a running show, which he has performed 100 times over. He performs the Kavard Katha. Am I correct? Yes. And that's how I think we also met, because we were doing something with Kavard, and that's where I met Akshay and I was enthralled by his performance. I've seen him live like a number of times now. His very recent show, which was running, It Is What It Is, which he has written, directed and performed, monologue, the entire thing. He was mesmerizing. I was sitting in the first row and I was just so excited to watch him to see him in that, energy out there. And it was phenomenal, Akshay. I don't know if I told you that, but I'm a writer, and to understand what goes on in this head, it's not very easy. And It Is What It Is one of those shows which actually, through movement, through performance, through dialogue, through all of it, even through projections, it really tells you what happens inside a writer's brain. So I think it is, if my mother is in town or if my family members are in town and it's running, I'm going to take them to show, the show, because उनको finally समझ आएगा कि मेरे साथ होता क्या है दिन भर. And it seems very intense. Honestly, we're okay. We're very normal people. It is what it is. But but if you can catch Akshay's performance across the world somewhere, I would highly, highly recommend it. He has some other shows like Manthan, in which he is collaborated with a Mohiniyattam dancer. And then there is It Is What It Is, which is, I think, going to do the rounds for a while. Next year, more rounds. Right. So I am very, very excited to hear Akshay's story today. Akshay's one story today. And हमारे पास आज कोई beverage नहीं है, because हम दोनों का ही मतलब थोड़ा सा गला खराब है, तो हम पानी से cheers करेंगे and शुरू करेंगे. So Akshay, I'm super excited to know your one story. What is this one story that you're going to share with us today? So मैं हमेशा से थिएटर नहीं करता था. Oh. Yeah, I was actually applying for my quantum computation PhD. Wow. Okay, that is something I did not know about you. और उस दौरान मेरा थिएटर से इंट्रोडक्शन हुआ और मुझे अच्छा लगा. तो I started exploring. फिर वो PhD पीछे छूट गया. थिएटर करते लगा यार ये मुझे करना है लाइफ लॉन्ग. और उसमें एक स्टेज पर ऐसा आया, आपके पास आप शोज़ कर रहे हैं, आप एक्टर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग तरह के शोज़ में, पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि हु एम आई एज आर्टिस्ट. एक्टर इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, परफॉर्मर इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, पर मैं कौन हूँ, मेरी आवाज़ क्या है, या मुझे मैं कैसे कनेक्ट करूँ अपने आप से. तो बहुत सारे टीचर कहते थे यू शुड फाइंड योर रूट्स. तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि फाइंड योर रूट्स का मतलब क्या है. तो मैंने कहा अच्छा अपने गांव जाके देखता हूँ, शायद वहाँ मुझे रूट्स मिल जाएंगी. तो एक बार जब मैं गांव गया तो वहाँ किसी बुजुर्ग ने मुझसे पूछा क्या करते हो. तो मैंने उनसे कहा थिएटर करता हूँ. अब हमारे गांव में किसी को ना ये नहीं पता कि थिएटर क्या होता है, वर्ड थिएटर नहीं है वहाँ. तो उनको बताने के लिए मैंने कहा मैं कहानियाँ सुनाता हूँ. और ये कौन सा गाँव है अगर कॉन्टेक्स्ट? जालोर एक डिस्ट्रिक्ट है. राइट. वहीं पर हम रहते हैं. और अभी भी वैसा ही है, पहले जैसा ही है वहाँ पर. उसके बाद में मुझे लगा कि मैं उनको कैसे बताऊँ, कहानी सुनाता हूँ, पर कहानी सुनाना क्या होता है मैं अपने आप से पूछने लगा. एंड देन ही रिप्लाइड सेइंग कि अच्छा वो कावड़ियों की तरह. तो मैंने कहा कावड़ियों की तरह क्या होता है. और उस टाइम पे ऐसा इतना गूगल वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था. तो उन्होंने बताया कि कावड़िया हुआ करते थे, उनके ज़माने में आते थे 40 साल
50 साल पहले वो आते थे गांव में, लोग बैठते थे, वो लोग सुनाते थे, पूरा वो बाजते थे कावड़ को। और मैं एक्साइटेड हो गया कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे यहाँ का कोई आर्ट फॉर्म है जो मुझे नहीं पता, शायद यही टीचर्स कह रहे थे फाइंड योर रूट्स, फाइंड योर रूट्स। तो आई गॉट रियली रियली एक्साइटेड कि यार ये तो पता करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग यू डू, वट एवर गूगल लिटिल इंटरनेट यू हैड, यू सर्च। तो नीना सबनानी करके एक प्रोफेसर हैं IIT में, उनका काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च था, वो मैंने पूरा पढ़ डाला। फिर मैं और एक्साइटेड हो गया, अब तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो अपने दोस्त की बाइक वाइक ली मैंने, और किसी ने कहा कि वो जोधपुर और भरतपुर के बीच में ढानियाँ हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे कावड़िया। बट किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था कि मैं किसी को कांटेक्ट कर पाऊँ। मैं कब तो ढूंढा जाए, वैसे भी काम और कुछ है नहीं तो ढूंढ ही लेते हैं। तो बाइक लेके निकला ढानी टू ढानी। मैं पूछ रहा था लोगों से कि किसी ने बताया खोजा राम जी एक हैं जिनके बारे में पता है कि वो कावड़ियाँ हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कब कावड़ पढ़ते हैं। आजकल इतना ओपनली नहीं होता है तो ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। एंड आई जस्ट वेंट एक ढानी से दूसरी ढानी, दूसरे से तीसरी, और फाइनली मुझे एक ढानी पे एक नीम के पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए थे, जैसे राजस्थान में बैठते हैं। करेक्ट। अर्ली इवनिंग का टाइम था और लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। ये कौन से साल की बात है? ये है 2015 होगा, 15 या 16। ओके, 10 years ago। हाँ, अराउंड उस टाइम पे। उस टाइम पे। और तो मैंने वहाँ से पूछा, जैसे मैं पूछ रहा था कि अरे खोजाराम जी यहाँ है क्या, तो लोगों ने पूछा, बुजुर्ग लोगों ने, कौन है खोजाराम। तो मैंने कहा कि अरे वो कावड़ पढ़ते हैं। बोले कौन सा कावड़, क्या कावड़। तो एक वहाँ पे साइड में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि यार इधर आओ। बोले क्या है। तो बोले खोजाराम जी को ढूंढ रहा हूँ। बोले हमारे गाँव में कोई खोजाराम जी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन वो कावड़ वगैरह पढ़ते हैं, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, आपको पता होगा। तो बोले क्यों ढूंढ रहे हो। मिलना चाहता हूँ उनसे, बस ऐसे ही। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो मैं लेके चलता हूँ एक इंसान के पास, उनको पता होगा। तो मुझे ले गए, हम वॉक करते करते उनके छोटे घर में पहुँचे। उन्होंने दरवाज़ा बंद की, लिटरली चटनी वगैरह बंद की। फिर बोले मुझे कि मैं हूँ खोजाराम। ओह, तो आपको उस समय डर लग रहा था? ऐसा नहीं, डर नहीं लग रहा था। आई वाज सुपर यंग, तो एक्साइटेड, एडवेंचर चल रहा था। बट आल्सो वी डोंट हैव सो मच ऑफ गैंग वॉर्स एंड ऑल ऑफ दैट इन राजस्थान, तो वो वैसा डर, हाँ, तो ऐसा डर नहीं है। सब बहुत चिल मोड में रहते हैं। दिल्ली में अगर आपके साथ नहीं, तो ये ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो दूसरी स्टोरी, दैट्स फॉर अनदर प्ले रिसर्च व्हिच आई डिड। तो वो मुझे ले गए और उन्होंने मुझे बोला मैं खोजा रहा हूँ, बताओ क्या बात है। वो सरप्राइज्ड कि यार ये इंसान, तो मैंने पहला सवाल यही था कि लोग क्यों नहीं जानते कि मैं आपके गांव में। तो उन्होंने बताया कि अब हम इसको रिजर्व रखते हैं, ज़्यादा लोगों के सामने बताते नहीं हैं, खासकर जिस गांव में ढानी में हम रह रहे हैं, राइट, वहाँ रिवील नहीं करते कि हम ये करते हैं। तो उनको ये पता है खेती बाड़ी करते हैं। फिर साल में या 2 साल में अगर कोई जजमान है जो पेटरन है, वो फैमिली अगर बुलाती है तो ट्रैक्टर में बैठ के पूरा परिवार जाता है, उनके लिए परफॉर्म करते हैं, रिचुअल करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, कभी 1 महीना 2 महीना करके। ओके, दैट इज़ वेयर इट गॉट रियली एक्साइटिंग कि ओ माई गॉड, एक्चुअली that is when I started understanding what does roots mean. They are literally living and thinking about this art form and how to preserve it, you know? तो मुझे लगा कि यार ये एक चीज़ है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि कैसे ये आर्ट फॉर्म है, क्या है ये, और क्या है ये लाइफ, क्या है। वहाँ से ये जो फोक वर्ल्ड है उसमें अलग अलग फोक आर्ट्स देखना शुरू किया, तो समझ में आया यार बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत एक्साइटिंग है, विदाउट लेबलिंग इट एज द ग्रेट आर्ट, विच दैट ह्यूमिलिटी आई रियली एंजॉय। आई एम लाइक वाओ, इतना महान कलाकार, आर्ट फॉर आर्ट सेक बेसिकली, बस कि मज़ा आ रहा है यार। हम गा रहे हैं, महान गायक बनने के लिए नहीं, गाने के लिए। हम सुना रहे हैं सुनाने के लिए, ना कि कोई बहुत महान कुछ अवार्ड जीतने के लिए, अवार्ड कुछ करने के लिए। एंड दैट रियली हिट मी आर्ट, क्योंकि तब तक मैं जिन भी आर्टिस्ट के साथ था उन सब का ये एम्बिशन था कि भाई ग्लोब में परफॉर्म करने को मिले, फलाना अवार्ड मिल जाए, वो वाली स्कॉलरशिप मिल जाए, वो फेलोशिप हो जाए। तो मुझे लगता है शायद यही दुनिया है। एंड इट सडनली फ्लिप्ड माय एंटायर वर्ल्ड कि वो एक्चुअली ये दुनिया ज़रूरी नहीं है होना। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल वन स्टोरी, वाओ। सो अब आप यहाँ हैं and you're obviously you've traveled the world for your theatre practices and all of that, even before this, right? 2015 से पहले भी आप वो कर चुके हैं। हाँ। तो आपने वो सब दुनिया देख ली है, आपने उनके साथ काम भी किया है, यू नो, वर्ल्ड थिएटर के लोगों के साथ, करेक्ट? एंड नाउ यूर इन दिस हम्बल मैन्स वेरी, you know, really humble person. I can imagine who this person would be. I've not seen him, but of course there's a lot about him on the internet and all of it. तो अब आपको क्या लग रहा है, वहाँ पे क्या ऐसा चेंज हुआ कि you're like कि अब तो ये रूट्स मिल गई मुझे, ऐसी कोई फीलिंग आई या क्या फीलिंग आया? फीलिंग ये आई कि रूट्स एक्चुअली मिलेंगी नहीं, रूट्स तो ग्रो होंगी और उसमें वक्त लगेगा।
वो ये ऐसे मुझे नहीं किसी हो और ने जाएगा। भी कहा है। जैसे मैं ना बहुत जगह बड़ी हुई हूँ, बहुत सारे अलग अलग शहरों में बड़ी हुई हूँ, और मेरी ज़िंदगी का एटलीस्ट टिल अबाउट 4 years अगो मुझे ये लगता था कि यार मेरे रूट्स कहाँ हैं। ऐसे लोग रूट्स की बातें करते हैं ना, हमारा तो वो गांव, हमारा तो ये, हमारा तो वो, और 4 पुश्तों से हम वहाँ हैं, या 5, या जिनके खानदानी बिजनेस भी हैं। अब मेरा ऐसा कुछ नहीं है, हर अपना मर्जी का कर रहा है, जिसको जो करना है वो अपना करियर पाथ फॉलो कर रहा है, और मैंने भी वही किया। So I was having this conversation with a friend, and he said, a very renowned filmmaker told this to him, said that roots, literally what you said, roots are not where you're from, roots are where you grow them, and that becomes belonging for you. So start looking at it like that, and suddenly that shifted my perspective कि अगर मैं बॉम्बे में रहती हूँ तो क्या खराबी है ये बोलने में कि मैं बॉम्बे से हूँ और यहाँ मेरे रूट्स हैं। अब मैंने एक्चुअली उगा लिए यहाँ पे, जैसे आप बोल रहे हो, छोटे छोटे ही होंगे, वेरी टेंडर, मे बी जस्ट water roots right now. But if I give them the right conditions, who knows, what that can be. So I totally relate to what you're saying, Akshay. But then you're not a coward performer. और जितना मुझे पता है coward के बारे में, like मुझे भी बहुत कम पता था आपसे मिलने से पहले, लेकिन जितना मुझे समझ आया, it runs in the family, and it is these communities that actually do community. Right, right. So how did then you get into this system, and then you have a play now which you've done 100 shows across the world. तो फिर वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से तो मेरा पहला इम्पल्स तो यही था, मॉडर्न इंसान हूँ, अर्बन हूँ, मैं आपको होस्ट करूँगा, आप आइए, है ना, आप आइए, मैं आपको होस्ट करूँगा, हम ऑडियंस लाएंगे, हम आपको मिलवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। देखिए मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। दैट वाज माय फर्स्ट इम्पल्स, दैट इज व्हाट आई सेड। ही वाज वेरी नाइस, काम, ही लिसन टू एवरीथिंग, इज लाइक ओके, राइट, ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो बोले देखो, जो चीज़ जितना जिंदा रहना है उतना रह लेगा, और जब अगर नहीं जिंदा रहना है तो वो नहीं रहेगा। detachment. हाँ, why are we so obsessed? And I'm like, yeah, that's so true. Why we are completely obsessed by preserve करना है। Right. वो preserve करने के नाम पे क्या हम stifle कर रहे हैं, क्या हम उसको dilute कर रहे हैं, वो हम नहीं सोच रहे। और he was very simple about कि जो preserving at what cost, and also another thing, I think वो एक थोड़ा सा you come on a pedestal and think कि मैं सेव करूँगा या मैं सेव करूँगी, हम कौन है कुछ भी करने वाले, राइट। सो आई थिंक दैट ह्यूमिलिटी इंडिया के जो इंटीरियर्स में लोग रहते हैं, मैंने भी वो देखा, बिकॉज माई फादर इज फ्रॉम अ विलेज, एंड जो गाँव के लोग हैं बहुत ही ब्यूटीफुल और हम्बल लाइफ जो जीते हैं। और आई एम नॉट सेइंग उनकी डिज़ायर्स नहीं है, ऑफ कोर्स इंसान हो आप, सबकी डिज़ायर्स होती हैं, बट दिस डिटैचमेंट दैट जो आप बता रहे हो खोजाराम जी के बारे में, आई कैन एक्चुअली फील व्हाट ही वाज मीनिंग टू से, दैट आई एम नोबडी इन दिस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। लाइक समटाइम्स नाउ व्हेन वी से look at the galaxy and you're just a tiny speck, but that's what we are. and मैं इतना बड़ा कोई टास्क ले लूँ कि मैं ये सेव करने वाली हूँ, I don't think the intent is that for people who have achieved it also. I think the intent probably would have been कि यार मुझे ये अच्छा लग रहा है और मुझे करना है, जैसे कि आप कर रहे हो उसके आगे। तो फिर आपने उन्हें इनवाइट किया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि जरूरत नहीं है, क्यों आप ऐसा, क्यों मैं अपने घर पे रखूंगा। बोले नीना जी भी हमें ले गई थी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वगैरह में, हमने वहाँ किया, पर हमें समझ नहीं आ गया हम ये क्यों कर रहे हैं। It just made no sense. And मैंने भी ये सोचा कि यार बात तो सही है यार। फिर यही बात मेरे भी ख्याल में है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों अपने आप को, सिर्फ शहर से आ रहा हूँ, अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसका तो मतलब हम शहर वालों की तो प्रॉब्लम, हमको ये प्रॉब्लम है। और मैं समझा, मैं चुपचाप निकल गया। मैंने कहा ठीक है, पर मैं आपसे मिलना चाहूँगा। आप बोले हाँ मेरा फ़ोन नंबर, शहर कॉम्प्लेक्स इसे आज टर्म करेंगे। हम शहर वालों को लगता है हम सब सॉर्ट कर देंगे, खुद का कचरा सॉर्ट कर नहीं पा रहे हैं। ये बात एकदम सही है, खुद एकदम फैले हुए हैं, और हमको लगता है हम गाँव को बचाएंगे जाके, जिनको बचाने की कोई जरूरत नहीं, वो बचे हुए हैं वो। तो फिर मैं उनसे टच में रहा, फिर मैंने उनसे वापस मिला, फिर मैंने सोचा आप मुझे दिखाएंगे कैसे करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, ये सब थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ, और ये क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं कि एक रिचुअल है, और रिचुअल यूजुअली कम्युनिटीज से जुड़ी होती हैं, कि अगर हम दोनों दोस्त हैं तो हमारा एक रिचुअल होगा, चाहे वो चाय पे मिलने का होगा, पर चाय पे मिलना तभी रह पाएगा जब हमारी दोस्ती होगी। तो ऑल रिचुअल्स आर इन अ वे कनेक्टेड टू कम्युनिटी। तो मैंने कहा कि रिचुअल तो मैं आप कैसे कुछ कर सकता हूँ, पर इसके अंदर एक आर्ट फॉर्म भी है, तो क्या आप उस आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाना नहीं चाहेंगे? क्या कांट वी डू समथिंग फॉर आर्ट फॉर्म? तो उन्होंने बोला ये आर्ट फॉर्म वगैरह ये सब आपके टर्म्स हैं, हमारे लिए हर कुछ ही आर्ट है ना। हमारे यहाँ मटका भी बन रहा है तो उस पर आर्ट है, इस पर भी है। तो हम ये जो डिविजन है आर्ट का और कल्चर का और सोसाइटी का और फंक्शन का, वो एक्चुअली ज़रूरी नहीं है। Such a beautiful thought. और मैं सोचा भाई ये क्या हो रहा है। These were the moments for me when I said कितना ज़्यादा हमने आर्ट को बांध दिया है एक्चुअली।
not everyone should become an artist, but everyone is an artist. And I think the idea that it comes from our education also, क्योंकि हमारी एक आर्ट क्लास होती है तो सिर्फ आप उसमें आर्ट करते हो और बाकी टाइम में like I realized very बहुत लेटर इन लाइफ कि मेरा ना एक सर्टन तरीका है काम करने का. एंड आई मेट अ साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट फॉर आई थिंक 35+ years नाउ. एंड इत्तेफाकन उनसे मुलाकात हुई, वो एक कोर्स ले रही थी हमारा. एंड यू नो आई टोल्ड हर, आई सेड मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मैं हर चीज़ रिपीट नहीं कर सकती, मैं सेम खाना नहीं खा सकती, मुझे हर दिन नया कुछ करना है, मेरा रूटीन भी नया होता है. और ये आसपास के लोगों के लिए भी एक तरीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बहुत अफलातून हो. मुझे ये शब्द बहुत बोला जाता है कि मैं बहुत अफलातून हूँ. शी सेड नो, यू आर जस्ट क्रिएटिव. This is just your way of experiencing life, and you just want to do it in a way that you're feeling, you know. So while you keep your boundaries that yes, I need to finish, because also modern life, so you have to finish tasks and आपकी schedules होते हैं और सब होता है. But she said there's absolutely nothing wrong with you. आप you know अंदर से you feel creative कि आज मुझे ये करने का मन है, ऐसे करने का मन है, तो मैं ऐसे करूँगी. तो वो जीने का वो एक बहुत बड़ा, that was also a very big मार्गदर्शन for me, that you know ऐसे भी जिया जा सकता है. there's nothing wrong. उस समय तक मुझे सबने बोला ये गलत है, क्योंकि बहुत ही साइंस और वैसे बैकग्राउंड से हूँ मैं भी, इंजीनियर हूँ खुद भी. तो वो हमेशा हर चीज को कैटेगराइज करना, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वैसे फंक्शन करता है, राइट? तो आपके लिए भी मुश्किल रहा होगा ना, क्योंकि साइंस कॉन्स्टेंटली. नहीं, मेरे लिए बहुत इजी था एक्चुअली साइंस टू आर्ट मूव करना. इट वाज एक्चुअली लाइक मैं घर आ गई. अच्छा, so you have always been an artist. So it was just because I come from a family which only understood science and maths. Like they never stopped me from doing anything else. Like but then again, like I'm saying, वो art एक period था कि आप art कर रहे हो क्योंकि आपको वो एक side भी human life का experience करना चाहिए. बट आपको करना तो यही है. तो जब कॉलेज भी कर लिया, उसके बाद जब मुझे फुर्सत मिली और मैं गई एक्सप्लोर करने राइटिंग एंड वट एवर, सो आई थिंक देन इट वॉज दैट it was this, that I'm home. Like the first day that I went to an NID, you know, orientation lecture, I was like, अच्छा ये तो सब मेरे जैसे है. मुझे वो फीलिंग आई. Like I was like, okay, finally I'm here where you know everyone's like me. Right. So मैं कहीं पता नहीं कहाँ फंसी हुई थी, जहाँ पे एक बहुत ही आपका जिंदगी का ये है कि ऐसे करना है, फिर स्टेप B है, C है, D है. तो यहाँ मैं L के बाद P कर सकती हूँ और P के बाद Z कर सकती हूँ और Z के बाद वापस C पे आ सकती हूँ. तो आपने NID कैसे डिसाइड किया? अच्छा, मेरी वन स्टोरी नहीं हो रही आज. You know, I'm curious about like, okay, engineering करने के बाद में. No, but now we will go back to Khoja Ramji's room. Now I'm meeting him again and again. And okay, तो क्या हम बात, हाँ, तो हमारा सब कुछ ये आर्ट है, obviously, वो आपके करने के ऊपर है. Right. तो मैंने कहा क्या मैं भी कर सकता हूँ ये? हाँ, आप करिए, अपने हिसाब से करिए, कैसे कर सकते हैं. तो मैंने थोड़ा समझा उनको, जो उनको परफॉर्म करते देखा, उनको ऑब्जर्व किया. And he performed for you? Or? Not full ritual. Okay. I've never seen a ritual actually. Oh, yeah, I really want to, but it just feels like a private event. I don't want to intrude. So I've asked and then फिर वो जजमान, फिर मुझे लगा कि छोड़ो यार, ये किसी का प्राइवेट वो है, और वो पूजा का एक सैंक्टिटी भी होता है, तो मुझे लगा कि यार नहीं इंटरफेयर करता मैं. तो उन्होंने मुझे पूरा जैसे परफॉर्म करते हैं, पहले सारे भगवानों के नाम लेना है, फिर इसका मतलब ये है, फिर यहाँ से यहाँ हम जाते हैं. तो उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया, बताया. तो फिर मैंने उस टाइम पे मैं एक शो कर रहा था कॉल्ड मूकी. मूकी शो था, नॉन वर्बल शो. पूरे शो में एक ही लाइन थी, मैं बोल नहीं सकती. And we are wearing this frock and a t-shirt and 5 of us are performing on stage, and it's a movement intensive piece, and we were traveling with it, Chennai, Pondicherry and different places, Hyderabad and all. तो traveling चल रही थी उस टाइम. तो वो खोजा राम जी की बात मेरे दिमाग में चल रही है, और यहाँ में एक abstract movement piece जिसको किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, but they are feeling it, they are feeling something's happening in the body, right? And so every morning I'm waking up and writing some material. और उस टाइम पे, उससे थोड़ा पहले ही मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी की डेथ हुई थी, एंड शी यूज्ड टू टेल मी लॉट ऑफ स्टोरीज बचपन में. हर दिन मेरे को खाना खिलाने से लेके, सुलाने से लेके, एंड समहाउ सडनली ऑल ऑफ दिस मिक्स्ड एंड आई स्टार्टेड राइटिंग, एंड दीज स्टोरीज वुड कम टू माई माइंड, दीज इमेजेस, दीज कैरेक्टर्स वुड कम टू माई माइंड. आई विल जस्ट राइट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. एंड देन आई वेंट टू खोजा राम जी कि ये मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ? हाँ, पढ़ो. मैंने पढ़ा, बोले हाँ ये आपका कावड़ का तरीका है. मैंने कहा कावड़, ये तो कहाँ? बोले हाँ ये आप जोड़ रहे हैं इनको ऐसे ऐसे, ये आपका तरीका है. मैंने कहा मैं करूँ इसे? तो उन्होंने बोला हाँ करो, जाओ अपने हिसाब से करके दिखाओ. फिर मैं गया वापस एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट एज एन आर्टिस्ट, विच इज़ व्हेन आई फेल्ट कि ओ अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या रूट्स की बातें थी, ये क्या चल रहा था. क्योंकि सडनली एज आई एम डूइंग इट आई एम फीलिंग व्हाट यू फेल्ट की बिलोंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि ओ ये भाषा मुझे ठीक लग रही है.
somehow इस पन्ने को मैं ना क्या करता था, राजस्थान में अपने ऐसे फोल्ड करते हैं पन्नों को और फिर ऐसे लकीरें खिंच जाती है वो अपने आप. करेक्ट. तो I used to write in that for some strange reason. I had no reason to do that. I would fold that paper multiple times और उसकी जो क्रीज है उसके हिसाब से मैं लिखूंगा बस. और वो बहुत ही अच्छे से कुछ ना कुछ बनने लग गया. And that was the first version. That time the name of the show was not Maya. It was just some stories. तो मैंने पढ़ी कुछ लोगों को, फिर और फिर हमने उसको थिएटर बनाया. What was interesting is I didn't had courage to go that far to do it like a performance. तो मैंने कहा इसका हम थिएटर बनाएंगे. म्यूजिक है, मूवमेंट है, मास्क है, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है, रोलर है. इट्स अ कावड़ इंस्पायर्ड. और हमारा एक ही एम था, कावड़ के बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि इतना हम कर सकते हैं. इससे ज्यादा क्या आर्ट फॉर्म बचेगा नहीं बचेगा वो हम कुछ नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. तो हमने इसको परफॉर्म करना शुरू किया. ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, बिग वुडन ब्लॉक्स एंड ऑल. पर वो कोई इनवाइट नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत भारी पेंटिंग्स थे और पेंटिंग्स को ट्रैवल करना मुश्किल था. और मैं बिल्कुल भी स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, मतलब कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ. मैं अपना जो भी कर रहा था उस टाइम तक. और पहला मेरा एक तरह से फुल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था जहाँ पे आई एम राइटिंग, आई एम डायरेक्टिंग, आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग, आई एम ओवरसीइंग ऑल ऑफ इट. तो उस हिसाब से कोई ट्रस्ट नहीं करता था मुझ पर. इनफैक्ट बहुत सीनियर आर्टिस्ट ने मुझे बोला भी कि मत कर दो, ये गलत कर रहा है. मैंने कहा ओके, वो हिट तो करता है एक बार के लिए, पर फिर मन ने कहा कि कर ले. वो शोज कुछ हमने किए. उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार मुझे इसको, फिर मैं अपने वापस पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क गया. फिर मुझे लगा कि नहीं यार, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गो ट्रेडिशनल डायरेक्शन, लेट्स नॉट मिक्स इट. फिर मैंने उसको जो भी ट्रेडिशनली जिस तरह से परफॉर्म करते हैं उस तरह से उसको कन्वर्ट किया उस शो को. तब वो बन के माया शो बना. And also, when did the box come in? That's when. So I said कि now I don't want to do my theater, I don't want to jump around because I knew that is my strength. थोड़ा इधर उधर कूदूंगा, थोड़े मास्क पहन लूंगा, थोड़ा एक्टिंग कर लूंगा तो लोग एंगेज हो जाएंगे. पर अगर कावड़ आर्टिस्ट की तरह बैठकर बिना किसी म्यूजिक के अगर 1.25 घंटा मैं कहानियां सुना पाऊंगा, तब तो मैं उस आर्ट फॉर्म के करीब गया ना. वरना तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि कावड़ इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस, ग्रेट, लॉट ऑफ आर्टिस्ट हैव डन दैट इन डिफरेंट आर्ट, डिफरेंट डिसिप्लिन, बट आई एम नॉट रियली गोइंग देयर to put myself in that position. And all along Khojaram ji was okay with you interpreting it in your own way, in a modern way with. उन्होंने बोला कि करो अपने हिसाब से करो तभी वो तुम्हारा है. तो मैंने कहा क्यों, बाकी कावड़िया भी तो वैसे ही करते हैं. बोले नहीं, हम पॉइंट ये है कि आप अपने हिसाब से करते हैं. हाँ, हम भगवानों के नाम लेते हैं, आप भगवानों के नाम नहीं ले रहे हो शुरुआत में, क्योंकि ये आपकी कहानियाँ हैं, विच इज़ फाइन, विच इज़ योर वे, राइट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये. सो कावड़ फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, बस एक कथा करने का तरीका हुआ. हाँ, करेक्ट. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि उसमें से हमने रिचुअल, पूजा, भगवान का वो आह्वान, वो सब हटा दिया है, राइट. बट बाकी जो सारी चीजें हैं कि कैसे शुरू होती है चीज, कैसे खत्म होती है, कैसे वो कनेक्शंस बैठते हैं, वो सब वहाँ. बट सुपर ग्रेशियस ऑफ खोजाराम जी ऑल्सो टू रियली लाइक यू नो एंड not really teach you anything, but in a way mentor you and be there for you and you know take you under his wing and for you to kind of just fly and become this artist and person that you are. Amazing one story, Akshay. Amazing. So Akshay, you said that you went to New York also to do some course or to study theatre. So you've done all of this. What all have you done, if you can just touch upon in terms of theatre जब करने लगे? तो शुरुआत मैंने की, एक टीचर हैं, राइटर डायरेक्टर हैं अभिषेक मजुमदार. तो वो उस टाइम पे लंदन से पढ़कर वापस आ रहे थे. एंड आई हैव सीन अ शो कॉल्ड मौत के साए में. वो मेरा पहला नाटक था जो मैंने देखा था. राइट. उसके पहले मैंने नाटक नहीं देखा था कभी. तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा है और दोस्तों से पता चला कि वो एक वापस लंदन से आ रहे कोर्स कर रहे हैं. मैंने ठीक है, अभी PhD में टाइम है, कोर्स ही ज्वाइन कर लेते हैं, इफ ही इज़ ओके. एंड ही वॉज वेरी जेनरस टू से आ जाओ, अगर तुम कमिट कर सकते हो तो आ जाओ. एंड द कोर्स वॉज ऑन डिवाइजिंग थिएटर. माने कि आपके पास एक आइडिया है या कोई इमेज है, आप उससे एक पूरा परफॉर्मेंस कैसे बनाएंगे. तो दैट्स डिवाइजिंग थिएटर, राइट. यू जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग ऑन फ्लोर एंड हाउ थिंग्स वर्क आउट. वहाँ वो 9 महीने मैंने किया और दैट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस. हम लाइक ये तो अलग दुनिया है जो मुझे पता ही नहीं थी कि आर्ट की दुनिया क्या होती है. एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी सपोर्टिव, एनकरेजिंग ऑफ जाओ पेंटिंग्स देखो, जाओ किताबें पढ़ो, म्यूजिक सुनो. सो मेरे लिए सब नया था. तो वहाँ से शुरू हुआ. तो डिवाइजिंग थिएटर बिकेम माई वेरी लाइक कोर फाउंडेशन. प्राइमरीली जैक लेकॉक करके एक फ्रेंच प्रैक्टिशनर है, उन्होंने काफ़ी काम किया है और वो ही अभिषेक शुरुआत में सिखा भी रहे थे, राइट. तो वहाँ पे वो शुरू हुआ. तो फिर वो ये है कि आपको कुछ आइडिया दिखता है, आप उसको डेवलप करने लगते हो. फिर एज एन एक्टर आई स्टार्टेड वर्किंग विद पीपल इन बैंगलोर ओनली, मोस्ट ऑफ द टाइम बैंगलोर. फिर मुझे पता चला, अभिषेक से पूछा तो उन्होंने और पढ़ो, इससे क्या होगा, ये 9 महीने कुछ नहीं होते भाई,
तो मैं भी ढूंढ रहा था चीज़ें, अभिषेक के साथ प्लेज भी मैं छोटा मोटा रोल कर रहा था इधर उधर। तो यहाँ बॉम्बे में एक IDP उस टाइम हुआ करता था, इंटेंसिव ड्रामा प्रोग्राम, जहाँ 4 बड़े मास्टर्स पढ़ाने आ रहे थे। राइट। उसमें से एक थे शंकर वेंकटेश्वरन, जो कि केरला बेस्ड आर्टिस्ट हैं और वो काफ़ी सॉलिड काम करते हैं, ट्रेडिशनल बेस्ड। तो उनकी भी क्लासेस थी, तो वो मैंने किया काफ़ी इंटेंसली। तो मुझे लगा यार बहुत बड़ी दुनिया है, इसे भी एक्सप्लोर करना है। तो एज आई एम मेकिंग एंड परफॉर्मिंग शोज, आई ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेनिंग मोर एंड मोर, जहाँ मुझे मौका मिलता है। और इंडिया में प्रॉब्लम सा ये कह लो कि फॉर्मल प्लस पैशनेट स्पेस नहीं है थिएटर ट्रेनिंग के लिए। हर कोई NSD बोलता रहता है, पर ठीक है, आई मीन इट्स अ स्कूल इन इटसेल्फ, लाइक एनी अदर स्कूल। वंस यू सी द वर्ल्ड यू आर लाइक हाँ, इट्स जस्ट वन ऑफ द स्कूल। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में खाली एक ही है, तो दैट्स दी ओनली, नॉट एक ही है, और भी हैं, जैसे त्रिशूर में है, भोपाल में है, लेकिन वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, आपको पता नहीं है उसका। तो आपके फॉर्मल ट्रेनिंग पूरी कहीं नहीं है, तो आप जितनी वर्कशॉप्स मिलती है आप कर लेते हैं। तो अगर कोई क्लाउनिंग सिखा रहा है तो क्लाउनिंग कर लिया, अगर कोई कुछ सिखा रहा है। फिर आदिशक्ति करके एक जगह है, वहाँ वीना पानी चावला फाउंडर थी, उनकी अभी नहीं है वो। वहाँ मैं एक बार गया और वहाँ उन्होंने सिखाया, एक 10-11-12 दिन हम लोग वहाँ पर रहे, ट्रेन के। उसके बाद से आई हैव बिकम रेगुलर टू आदिशक्ति। Vinay and me, I would go, I would show them my work which I'm doing, they will give me feedback. So एक उस तरह का कल्चर बनना शुरू हुआ। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत डीपली इन्वॉल्व है अपने आर्ट में, they are really spending life time to create something. And उस टाइम पे वीना पानी मैम was making a show called The 10th Head. Okay. और वो था रावण के 10 सिर हैं। Right. और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि 10 सर हैं, तो अगर 5 आप इधर लगाओगे, 4 इधर लगाओगे और एक बीच में रखोगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आइडियली मैं भी हमेशा सोचती थी इस बारे में। It's a weird problem to solve. And one of the solutions she said is that what if he has a 9 मोतियों का नेकलेस हो। Okay. चेहरा एक ही है, और उस हर मोती में उसका चेहरा का एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है। So I was fascinated by her work, her journey and her like really deep involvement in practice. तो वहाँ से उनसे आशीर्वाद लेके फिर मैंने कहा यार मैं और करना चाहता हूँ। Which is when I started looking for what I should do. And I was very clear that आई विल टेक वर्कशॉप्स इंडिया में, बट मुझे ढंग से पढ़ना है, स्कूल नहीं जाना है। और एक एन बोगार्ड नाम की थिएटर डायरेक्टर है न्यूयॉर्क में, उनकी कंपनी है सिरी कंपनी, SITI, उनकी नहीं, मतलब वो सब लोगों ने मिलकर एक बनाई है, SITI। वो लोग जो काम कर रहे थे वो मुझे बहुत पसंद था। और एन बहुत किताबें लिखती है, ब्लॉग्स लिखती हैं थिएटर के बारे में, आर्ट के बारे में, वो जो देखती हैं। और आई यूज्ड टू बी फैसिनेटेड बाय, आई एम स्टिल फैसिनेटेड बाय द वे शी राइट। एकदम सिंपल, इतना सहज लिखती हैं कि ऐसा लगता है ओ इतनी सी बात थी पर वो बहुत बड़ी बात कह दी। सिंपलिसिटी तक आने के लिए कितनी जर्नी होती है, बहुत लंबी। बाकी सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मेरे आसपास, सब बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता, और वो एन एकदम सिंपल बात। जितने लोग बड़ी बातें कर रहे हैं ना वैसे सोशल मीडिया पे, बच के रहो, सब बड़ी बातें ही है। बट लाइफ जितना मैंने भी समझा है, बहुत छोटी सी समझ है मेरी, बट सिंप्लिसिटी तक पहुंचने के लिए, जैसे मैं भी कभी लिखती हूँ, वो कॉम्प्लेक्स चीजें तो अरे ये शब्द वो शब्द ये वो, लेकिन हाउ डू यू से इट। एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली हेल्प्स मी इन दिस राइटिंग प्रोसेस इज हाउ डू आई से दिस टू अ 5-year-old, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू अ 5-year-old। इफ यू हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स, लाइक सपोजिंग आई एम writing a breakup scene. Now I try to do that. I'm not saying I'm successful or not successful, वो तो बाद की बातें हैं। But the point is मैं एक 5 साल के बच्चे को कैसे बताऊं कि 2 लोग जुदा हो रहे हैं, 2 लोग जो प्यार करते थे एक दूसरे से, अब वो strangers बन चुके हैं। How does that happen and how do you explain it to a 5-year-old that this is, you know, that really helps me. And it really puts me in my place that bhai, you don't have the answer to this. So we don't have answers to everything. I'm not saying you need to have an answer, but I think if you can explain it to you know, a child, then I think somewhere you've, why? Because it has to be simple. Then you have to go through that whole journey that you're shown in It Is What It Is to come to that simplicity of yeah. So nice. So now you went to New York also, and did you go elsewhere also in the world? तो मैं कुछ practitioners को follow करता था around world. I still have lot of long list of theatre artists I want to work with. Okay, that's my next question. I will not interrupt you here. नहीं कुछ नहीं, तो उसमें से Anne and her company, and they practice this training called Suzuki method, okay, which is developed by Tadashi Suzuki in Japan, which is looking at a lot of classical forms coming together to create a body which is transparent, a body which is not trying to act but reflect the presence. और वो मैं fascinated था उसमें, तो वो सुजुकी मेथड पे काम कर रहे थे। और यहाँ मुझे आसपास कुडियाटम, कथकली सब दिख रहा है, तो मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग है। फिर किसी ने मुझे व्यू पॉइंट्स, एक जो ट्रेनिंग जो एन ने अपने हिसाब से आर्टिकुलेट किया है उसको,
वो प्रैक्टिस करते हैं. एंड इनकी कंपनी क्या है ना, क्या खास बात है कि वो लोग प्रैक्टिस करते हैं. शो बन रहा है नहीं बन रहा है डज नॉट मैटर. यू आर इन द रूम, यू आर प्रैक्टिसिंग. एंड दैट इज मिसिंग इन थिएटर एंड एक्टिंग वर्ल्ड. क्योंकि आप कोई भी अलग आर्टिस्ट होंगे, आप राइटर हैं, आप रोज लिखेंगे, आप म्यूजिशियन हैं, आप अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करेंगे, आप डांसर्स हैं, आप अपना कोऑर्डिनेशन मूवमेंट. थिएटर एक्टर लेजी होते हैं, मैं खुद लेजी हूँ, है ना. आप खोल मिला के आप एक्सरसाइज कर लेंगे ज़्यादा, बट दैट इज नॉट एक्टिंग. अगर एक्सरसाइज आपको एक्टिंग बना रहा होता तो सारे फिट लोग अच्छे एक्टर होते हैं, विच इज नॉट ट्रू, राइट. तो ये बहुत यूनिक बात थी उनकी कि यार ये तो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं. ऐसी कोई चीज है मतलब मॉडर्न थिएटर में भी जो रोज प्रैक्टिस की जा सकती है. सो आई रोट टू देम, दे सेड बट यू नीड टू हैव इनफ एक्सपीरियंस इस सुजुकी मेथड व्यू पॉइंट में टू बी पार्ट ऑफ अस. आई सेड पर मेरा आप काम देख लीजिए प्लीज. Then we talked, and Ellen Lauren, who is the main training person, she said, okay, aa jao for a 1-year course. Wow. And I said, okay, I'll figure out money and I'll come there. And then I figured out money somehow to go to New York. और अभी भी लिस्ट है. फिर उसके बाद में यूजीनियो बारबा करके एक हैं, ओडियन थिएटर डेनमार्क में. वो बहुत फेमस है अपनी ऑर्गेनिक ड्रामेटर्जी के लिए कि कैसे आप किसी भी मटेरियल को, तो उन्होंने एक शो बनाया है जिसमें 7 लैंग्वेजेस यूज करते हैं एक्टर्स. वो ऐसी 7 लैंग्वेजेस है जो दुनिया में कोई नहीं बोलता अब. सो दे आर डेड लैंग्वेजेस, एंड दे मेड अ शो विद दोज लैंग्वेजेस सेइंग if the theatre communication has to rely on spoken word, then this play should not work. So it's talking about how words have power beyond meaning, and what actors can bring on table. I still remember this very powerful moment at NID. Nitin Goel sir, I think he's from FTI, and he had come to take our acting course, and there was a lot of like he was doing multiple exercises obviously with us. एक exercise थी वो amphi में हमको लेके गए, and he said आप something he had briefed us कि ऐसा एक scene लिख के लाओ या whatever, and there was one of us who was from I think it was Vishnu. He is from Telangana now, I think, right? Back then Andhra Pradesh. And he said, you know, I can't think in Hindi, I can't think in English, and these guys will only understand that. And then sir was like, who said? Try it in Telugu. So he said, no, how will I talk to them in Telugu? He said, just write your scene in Telugu and get it here. Trust me on this. And Vishnu came, he performed the entire scene in Telugu. He got one more, fellow who could, there were 2 people, and so they did that banter. I still remember that moment. They did the entire scene, and then sir looked at all of us and said, what did you understand? And I think I was one of those people, and there were others also, I'm not taking all the credit, but I was like, ऐसा शायद कुछ हुआ, फिर ये feeling आई, फिर ये हुआ, फिर ऐसा इसने low feel किया, whatever, and Vishnu was amazed. Like, I think he had tears in his eyes because no one had ever done that to him, that understanding a language that, because we just assume, अच्छा आप तेलुगु बोलते हो, मुझे नहीं आती तो मैं नहीं समझ सकता. But वो शब्दों का जो फेर है, उसका जो टोन है, वो सब साउंड से समझ आ जाता है. तो अगर आप मतलब नहीं भी समझते वो भाषा, तो आई कैन टोटली गेट दिस. एंड इट वाज सच अ स्मॉल मोमेंट, लाइक 10 मिनट्स का एक मोमेंट था जो जिंदगी भर के लिए मुझे एक वो रह गया कि भाषा कुछ नहीं, मतलब there is 2 people can talk if they want to talk. It was invented in that way, right? Yes. That we were talking even before there was language. Like we were communicating, right. Sorry, not talking, but we were communicating. And it is such a so I can totally, sorry, I just got back to that time because that's such a powerful moment in my life also, that you don't need language to interpret or to communicate with each other, right? You just need to have the intent, and if you have that intent, वो अपने आप होते रहता है. So this is fabulous. If I get a chance to see this show ever, I would be so interested. वो अब तो I think वो show तो नहीं running हो रहा. पर हाँ, वो तो Suzuki Viewpoint became my core practice then. Then I now have a practice which I can say I can go back in Rome when the world is falling apart. I can be with the practice. I'm very grateful to my teachers at City Company because that is what they gave me. Right. And then Eugenio and company helped me contextualize a little bit more. Right. The world and things around. But this is fabulous, Akshay, that you. But I just want to come back to the one story, the fact that वो rootedness that you were looking at, या belonging, या मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, या what is it that I can fall back upon. So you did all of this, and yet there was something that was missing. Was it a piece of a jigsaw puzzle, या
क्या था वो? What was that feeling? If I just want to understand that feeling, and you're a theatre person, so I'm sure you'll be able to explain. If you can't explain it, please perform it and tell me. But what was that feeling जो लग रहा था कि यार ये सब तो कर लिया आपने, सुजुकी मेथड कर लिया, मतलब मैं तो उतना नहीं जानती इन चीज़ों के बारे में, but जैसे मैं समझ पा रही हूँ, I'm sure they are prolific people in their fields and all of it. So you've done all of this, but you're still feeling like something's missing. Why do you think that happened, and what was that feeling? क्योंकि हमारे टीचर्स ने बोला था ये, और मैं उस टाइम नहीं समझ पा रहा था. हमने ट्रेनिंग ले लिया, ट्रेनिंग कर लिया, क्राफ्ट एक तरह का बिल्ड हो गया. मतलब आप में एक कैपेबिलिटी आ गई कि आप अगर एक रनर हैं तो आपको रनिंग की टेक्निक समझ में आ गया, रनिंग समझ में आ गए हैं. पर अगर आप में वो डिज़ायर, अगर आप में वो हंगर, अगर आप में कुछ नहीं है तो आप क्यों भागेंगे? और वो मेरे साथ होने लगा कोविड के दौरान. उसके बाद में आई सेड ओके, मुझे पहले लगता था जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में होता है, आपने एक एजुकेशन ले लिया. हमारा माइंडसेट क्या है कि एजुकेशन ले लिया मतलब अब आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, अब आप काम कर सकते हैं. बट आर्ट में मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है. राइट. आपने एक ट्रेनिंग ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्टिस्ट बन गए हैं. राइट. आपने सिर्फ क्राफ्ट अक्वायर किया है. आर्टिस्ट बनने के लिए तो एक सर्च है, खोज है जो आपको करनी ही है, खुद के साथ करनी है, स्ट्रगल होना है, सोसाइटी के साथ करनी है, आसपास के लोगों के साथ, फैमिली के साथ करनी है. और वो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या था, एजुकेशन मैंने ले लिया और मैं ऑब्वियसली ज़िंदगी भर चलता रहेगा, ये एजुकेशन ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है. पर एक मोटा मोटा कि यार अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सके एज आर्टिस्ट, पर वो तो हो ही नहीं रहा है. आई एम स्टिल फीलिंग लाइक आई एम नथिंग, मुझसे कुछ बन नहीं रहा है. तो वो जर्नी करना बहुत ज़रूरी था, और उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सेप्टेंस से लेके, फाइनेंस से लेके, क्या क्रिएटिव का बात आप कहना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो, क्यों कहना चाहते हो, किस लिए कहना चाहते हो, क्या इसकी ज़रूरत भी है, अगर है भी तो क्या है. तो वो सारे सवाल घूमते रहते हैं दिमाग में, एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक आई एम राइट नाउ. आई थिंक आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट. आई हैव अ ग्लिम्स इनटू इट. टुडे आई नो कि इफ आई एम मेकिंग अ शो, I have some glimpse in terms of what it means to me. If it means nothing to me, I might find a way to create a relationship. और वो एक आर्ट के साथ एक रिलेशनशिप अब बिल्ड हो रहा है, और वो रिलेशनशिप आप ही का जर्नी है. उसमें पिछले साल मेरे टीचर्स जो सिटी कंपनी वाले, दे आल्सो मेंटोर्ड मी. जैसे कि चलो बात करेंगे, इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट, विल मीट यू ऑनलाइन. एंड दे आर बिजी पीपल, एक्सट्रीमली बिजी पीपल. They would take out some 2 hours, 3 hours for me, meet me online, talk through it. क्योंकि वो बड़े भी हो गए हैं, तो उन्होंने देखा है, तो बोले अभी तुम्हें इस उम्र में लग रहा है पर हो जाएगा. How nice. But yeah, I think one of the things I also always go back to is why did you start? And I think वो why हम कहीं ना कहीं अगर पूछते रहें खुद से, as creative people, as artists, as whatever we are practicing, whatever we are doing in life, you know, I think even for marriage, you know, for that matter, like why am I married? Why did you get married in the first place, right? So anything, or why am I in this relationship? Why am I in Bombay? Why am I, you know, doing all of it? I think that's something also I learned at NID through one of the, you know, mentors there. एंड वो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि मुझे भी जब तक क्यों समझ नहीं आता ना, मुझे लगता है ये तो बड़ी शैलो या हॉलो सी चीज़ मैं कर रही हूँ, बिकॉज मे बी आई एम टोल्ड टू डू इट और एवरी वन इज डूइंग इट, सो आई एम feeling that peer pressure. But I think why really sorts it out for me. So very well put, Akshay. Akshay, I wanted to ask you, you said मैं यहाँ जा रहा था, मैं ये पढ़ रहा था, ये हो रहा था, whatever, you know, as a theatre person, as a theatre actor, writer, director, back then you were aspiring, you were trying to learn. How do you sustain yourself? Or how did you sustain yourself? मतलब काफी हाँ, आपकी चुप्पी बता रही है मुझे, बिकॉज एज अ राइटर ऑल्सो, राइट, तो एक सिस्टमैटिक और सिस्टेमिक कोई हेल्प है ही नहीं इस देश में, तो नहीं है. और अब तो हम सब इस बारे में बात कर रहे हैं, बट बात ही कर रहे हैं, राइट, कुछ ऐसा कुछ कॉन्क्रीट हो नहीं रहा है. अनलेस आई हैव मनी टू पे माई रेंट, how am I going to dream up stories and write and all of that, which is the biggest challenge of my life right now, right, even till date, like after being a writer for a bunch of years or whatever I've been practicing. But how did you manage, and is there anything that worked for you, did not work for you? Was it frustrating? Was it, you know, like, did you give up at times? Because you're such an energetic person. I can't imagine you giving up, but then you make a play like it is what it is, and I understand what you're going through. और वो सबकी जर्नी होती है, right? We all go through those lows, and you know that happens. So what helped you? What worked for you? If you can just shed some light. Definitely my wife, Anita. I mean, there is no doubt about it. That she just says it. We'll figure it out, and that's it. I think that's a lot of strength. क्योंकि obviously जैसे आपने भी बोला, private is private, right? So obviously people don't see कि अंदर क्या चल रहा है, and she knows it. Obviously she sees it, and she trust. I think और जो एक इंसान आपके पास में हो जो आप पे ट्रस्ट करता हो ना, वो बहुत बड़ी बात है.
क्योंकि आपका ट्रस्ट आपके ऊपर से हिल जाएगा. But so how long have you been married for now? Now 10-11 years I think. Oh wow. So everything happened after. In front of her, like she has seen me like go all over the place. And you had the gumption to get married at a Yeah. time where you were also trying to figure your career, do all of that. all of it. हमें जल्दी करो यार, क्या टेंशन है. Guts. साथ में कर लेंगे सब कुछ. But yeah, there was a time जब मैं काम बनाने में जब घुसता हूँ तो फिर मैं भूल जाता हूँ दुनिया क्या है कैसे है. और एक बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल भरा रहा था और वो ऐसे है ना स्वाइप कर देते हैं. स्वाइप कर दिया, फिर वो एक मैसेज आता है पीछे, आपके अकाउंट में 2305 रुपये बचे हैं. Yeah, And I'm we've all just been there. looking at that message. और तब मैं सिर्फ काम ही बना रहा हूँ. तो मतलब मैंने तब तक थिएटर से 1 रुपया भी नहीं कमाया था. मेरे पास जो भी सेविंग थी मेरे पुराने काम से वही खर्च कर रहा था. और मैं बस ये सोचता रहा बाइक राइड बैक होम कि मैं 1 रुपया भी अगर मुझे कमाना हुआ आज, वो 1 रुपया कैसे कमाऊंगा. आई हैड नो क्लू. अनिता ने बोला I'll figure it out, don't worry, we'll figure out something. I get a call from a friend in Chennai saying यार तू सुजुकी सीख कर आया है, हमारे यहाँ पे कुछ एक्टर्स हैं, थोड़े फिल्म के हैं, थोड़े थिएटर के हैं, would you come and share some of your material? I said यार मैं आ सकता हूँ बट कुछ पैसे मिलेंगे. For the first time I asked कुछ होगा मिलेगा. She said अपन थिएटर वाले ही हैं, will contribute. जो जितना दे पाए will pass a hat. And मैंने कहा कर लूँगा मैं, चलेगा. दैट डे आई रिमेंबर आई हैड बहुत कम पैसे थे. मुझे पता है वो 2305 रुपये ही हैं मेरे पास. तो मैं चेन्नई वाली ट्रेन से उतरा, वॉक करके उसके घर तक गया. मैं एक चाय तो बनती है तो 10 रुपये की चाय पी ली. अब थोड़े कम हो गए थे पैसे. एंड देन आई टुक दैट वर्कशॉप जब मैंने ली उसने अपने घर पे ही रखी थी. बहुत मुझे मज़ा आया क्योंकि इस बार मैं वो वर्कशॉप सिर्फ शेयरिंग की उससे नहीं कर रहा था. इट मैटर्ड टू मी मच मोर. एंड देन दे पास्ड अ हैट. 5,000 समथिंग रुपए कलेक्ट हुए. दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग. आई वाज सो हैप्पी दैट ओके आई अर्नड. मतलब कुछ कर सकते हैं. मैं पढ़ा सकता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट फिगरिंग आउट मैं कर क्या क्या सकता हूँ. अब जो भी क्राफ्ट बिल्ड किया और मुझे लगता है ये ही तरीका है सस्टेनेबिलिटी का, एटलीस्ट हमारे देश में. या तो आप एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लीजिए, स्कूल्स कॉलेजेस जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपके क्राफ्ट की. पर मुझे ये था कि यार मुझे नहीं ज्वाइन करना है. आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी हमेशा कंपनीज के साथ रही है. आई नेवर ट्रेन्ड इन अ स्कूल. तो मेरा वो रेगुलर रूटीन वाला काम मुझे नहीं करना था. सो देन आई स्टार्टेड एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग. ओके मैं जब वहाँ चेन्नई में पढ़ा सकता हूँ, बैंगलोर में भी पढ़ा सकता हूँ. तो आई टुक दैट वर्कशॉप. फिर मैं अच्छा वॉइस पे भी पढ़ा सकता हूँ. ठीक है. तो पढ़ाना और शेयरिंग मटीरियल विच यू नो बिकेम वन बिग चंक, जहाँ से एक सर्वाइवल आने लगा. फिर लगा कि यार अप्लाइड थिएटर करके एक होता है कि आप जो थिएटर करते हैं वो थिएटर वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है पर और भी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है. चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, कॉर्पोरेट पीपल हों. तो वो फिर एक तरीका बना कि यार ये भी मैं शायद कर सकता हूँ और वो आपको एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ेगा. तो मुझे ये समझ में आया, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए क्या क्या कर सकते हैं. एंड देन ऑल्सो टू रियली स्टार्ट पिचिंग योर शोज विच आई एम लाइक नहीं मुझे कमाना अपने काम से है, सिर्फ पढ़ाने से नहीं कमाना है. दैट इज़ नॉट द लाइफ आई एम लुकिंग फॉर माई सेल्फ. तो आप अपने शोज़ को जब आप करते हैं तो बहुत बड़ा खेल ना, अब उसको क्या कहें, सेरेंडिपिटी कहें या कैसे भी कुछ भी कहें, कुछ तो ऐसा है कि होती है चीज़ें. जैसे एक दोस्त ने मुझे बोला यार तेरे कावड़ का वो शो है सुना है, तो आएगा हमारे यहाँ परफॉर्म करने. क्योंकि वो माँ बनी थी और वो कॉन्सर्ट सुनने नहीं जा पा रही थी. तो वो चाहती थी कि वो और उसकी बेटी घर पे कॉन्सर्ट सुने. तो म्यूजिशियन है वो, तो अपने दोस्तों को बोला कि लिविंग रूम कचहरी उसने शुरू किया. तो शी वाज रनिंग एंड शी सेड यार वी कैन आल्सो डू योर शो हियर. कुछ नहीं है, हैड कलेक्शन होगा, जो मिलेगा. मैं कहा हाँ यार चलेगा, क्या टेंशन है, दोस्त है कर लेंगे. तो गया वहाँ शो किया. वहाँ 2 ऐसे लोग थे जो अलग अलग बैकग्राउंड से थे. उन्होंने वो शो देखा, अपने अपने फेस्टिवल्स में इन्वाइट किया. एंड देन वन थिंग लेड टू द अदर थिंग लेड टू द अदर. आई एम लाइक ओह यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. जस्ट डोंट से नो. ये मुझे बहुत मुश्किल से सीखा मैंने, क्योंकि मेरे को नो कहने की काफ़ी आदत थी. मैं क्यों करूँगा वहाँ, मैं यहाँ ऐसा क्यों करूँगा, मेरा का देयर वाज टू मच ईगो. एंड द मोमेंट दैट 2305 रुपये हुए, what it did is it actually crushed my ego कि भाई तुम कुछ नहीं हो, है ना. और हाँ कहने में क्या बुराई है. अगर किसी ने, मैंने एक इंसान के लिए भी शो किया है क्योंकि उस दिन वो छुट्टी थी वहाँ पे. उस ऑर्गेनाइजर को पता नहीं था कि सब लोग चले जाएंगे. उसमें अक्षय कोई नहीं है, मैं ही हूँ अकेला. मैं कल परफॉर्म फॉर यू, आई हैव कमिटेड एंड आई विल कम हियर, आई विल परफॉर्म. आई परफॉर्म द एंटायर शो दैट टर्न ऑडियंस. मैं कहा अब मैं ना नहीं बोलूँगा यार, चलो लेट्स डू इट. बट यू नो अक्षय, यू सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच आई थिंक फॉर आर्टिस्ट स्पेसिफिकली ये बहुत होता है कि हम बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं.
एंड आई थिंक मेरे आई ऑल्सो हैड दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ वेयर मुझे लगा कि मनी इज़ नॉट फॉर मी बिकॉज आई एम परसुइंग आर्ट तो यू नो आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट मनी and I had a very warped relationship with money for a very long time, right? And my mother, you know, she often told me, she said, you've never valued money. Why will money come to you? You don't value money. बात तो सही है. And मुझे ऐसा लगता था, अरे आपने you're telling me to be materialistic. And she said, but what is wrong in being materialistic? I'm not telling you to be materialistic. I'm telling you to take care of, you know, how you want to live and हमें लगता है कि हम कम में रह लेंगे, छोटे घर में रह लेंगे, छोटा कर लेंगे, दाल चावल ही खाएंगे, you know, But if you're not experiencing life, you're also not being able to put it into your work. So experiencing life also is very important. And for a very long time, mom ke paise pe I was experiencing life, right? But after a point, it became like, no, I need to do this by myself. And I realized पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है. But actually नहीं है. Actually जो आप बोल रहे हो, जो हमें उस point पे जो 2305 रुपए पे पहुंचता है इंसान, मैं उससे थोड़ा नीचे गिरी थी, शायद 1300 के करीब था, 1200 something. I realized that, you know, yeah, I mean, I have to, like, what is it for a woman in this country? It's basically either I can ask my parents or I can get married and I can be dependent on my husband, which is what anyone will tell you to do. And I said, ये दोनों ही option मुझे, I'm rejecting these two options and I want to do it myself. Okay, so now what do I do? Right? So obviously it's been a tough relationship to money, but somewhere along the way मैंने सीखा managing money, investing money, you know, all of it. I put in that effort, I learned, what I didn't know, मैंने सीखा, पूछा, जैसे आप बोल रहे हैं. आपकी रिलेशनशिप कैसी थी फिर पैसे के साथ? Like, मेरी अभी भी बहुत मुश्किल है. मैं अभी भी नहीं सोच पाता हूँ, मुझसे नहीं होता है. और मैं फिगर आउट कर रहा हूँ. आई विल बी ऑनेस्ट, द ओनली थिंग आई वुड से इज कि अभी मैं बस काम ले लेता हूँ. मैं ज़्यादा मना नहीं करता, मैं मांग भी नहीं पाता ज़्यादा, पर मैं इसको फिगर आउट कर रहा हूँ. आई स्टिल डोंट हैव अ क्लियर रिलेशनशिप. एक बात जो है वो मेरे टीचर ने कही थी, वो मेरे दिमाग में है पर अभी वो उतरी नहीं है. वो उन्होंने कहा था कि पैसे के साथ रिलेशनशिप ऐसा है जैसे बोट का रिलेशनशिप पानी के साथ है. अगर पानी बहुत कम होगा तो बोट तैर नहीं पाएगी, और पानी अगर गलत जगह होगा तो बोट डूब जाएगी. And I'm like, profound. And someday I will experience it. Yeah. But अगर just the right amount of water. Just the right amount a to nice take you boat to take you somewhere. And to go sailing. Yeah. Right. जो आप कह रहे हैं कि experience भी तो करना है लाइफ को. Right, because you know हम ये idealism में इतना खो जाते हैं कि and that's why the word poor is associated with most artists and कहीं ना कहीं गरीब झोले वाले. Exactly, वो एक इमेज बना दी है हमने कि झोला लेके आपको घूमना है और आप वही एक सिगरेट पी रहे हो, आप एक चाय वो 5 रुपए 10 रुपए की चाय पी रहे हो and that is your life. But if you're not experiencing life beyond that, if you don't have the money to take somebody out, you don't know what it means to take somebody out or to, you know, do other things, go out with friends. आपके दोस्त जा रहे हो, हमेशा मना कर रहे हो कि नहीं यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, आपको वो एक एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा. तो आपका एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेंडशिप विल देन जस्ट बी दिल चाहता है, राइट? बिकॉज यू सीन इट ऑन स्क्रीन एंड दैट इज नॉट व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप इज आल्सो. इट्स अ ग्रेट फिल्म, इट्स एन एब्सोल्युटली वंडरफुल फिल्म, बट आई एम सेइंग दैट आप अपना भी तो इंटरप्रिटेशन निकालोगे और फिर कोई और फिल्म कैसे बनेगी अगर आप सिर्फ एक फिल्म की कॉपी ही आप समझोगे ना. दोस्ती क्या है, प्यार क्या है, रिश्ते क्या है, व्हाटएवर. बट आई थिंक दैट आइडियलिज्म इज स्लाइटली अ प्रॉब्लम. ऑल्सो यू स्पोक अबाउट समथिंग कि काम मांगने में भी हमें तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा, विच आई थिंक 2025 में सबने किसी पॉइंट पे तो अब मांग ही लिया होगा बिकॉज इतना खराब साल गया है सबके लिए. बट यू नो लाइक टू पुट योर सेल्फ आउट देयर. आई थिंक द आइडिया इज दैट टू पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड से कि यार काम दे दो. एंड एज अ फ्रीलांस राइटर आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज सारा समय नहीं होता है एंड किसी को क्या पता आपका तो जो लाइफ दिख रहा है, अगर आप 2 पिक्चर्स भी पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, पीपल आर थिंकिंग यू आर फाइन एंड वेल. एंड वाई विल दे थिंक दैट यू नो आपके पास काम नहीं है या 12 महीने से काम नहीं है, एंड यू नो अनलेस यू से दैट. सो आई थिंक दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ जस्ट बीइंग एन आर्टिस्ट एंड डिसाइड हु यू वांट टू बी. एंड इफ यू वांट टू बी अ पुअर आर्टिस्ट, ग्रेट, बट आई डोंट थिंक यू हैव टू बी अ, विच इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड नाउ, दैट वो एक जर्नी है अपनी, आपकी एक वो सुधारनी पड़ती है जो पैसे या मनी से जो एक रिलेशनशिप है, which और वो एफर्ट है like any other relationship. I think ये इसका अपना वक्त लगता है और बनाना ही चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि वो क्या गलत है. Yeah, and I've also come to realize money is also energy in that sense. तो अगर आप पॉजिटिव लोग चाहते हैं लाइफ में, तो आप अगर पैसा चाहते हैं, पैसे से क्या होगा, ये होगा, ये होगा तो क्या होगा, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊंगी, मैं लिख पाऊंगी, यू नो इट्स बेसिक्स, राइट? बट यू नो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट ये तो हम अपने बारे में क्या चेंज कर सकते हैं या व्हाट इज इट दैट इट यू नो फील्स विद इन. ऑल्सो इन द कंट्री एज अ होल, आई डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड, बट इन द कंट्री स्पेशली अगर मैं फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, अपने पर्सपेक्टिव से,
again it comes back to the point that nobody is enabling me to do the basic, which is paying my rent and paying my bills, basic bills. मेरे पास कोई EMI भी नहीं है, because हिम्मत ही नहीं हुई EMI लेने की, right? Because अगर आप ले ली तो फिर आपको पता नहीं कहाँ से क्या आ रहा है और क्या होने वाला है. So but the basic खर्चा also that I have, अगर मुझे वो भी मिल जाता है, it gives me so much freedom to do what I can do. But in the country, it's obviously, now I'll ask you this question for the art world and for the theatre world. Are there any residencies? Is there anything where, you know, that bit is taken care of कि आपका sustenance हो रहा है और आप सीख भी रहे हो और आप apply भी कर सकते हो और आपका experience भी बढ़ रहा है? Is there anything like that? Is there anything that you found beneficial which, you know, somebody who's listening right now उसको लगे कि हाँ यार ये hope है मेरे लिए? मतलब एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो ये है कि आर्टिस्ट काफ़ी हैं थिएटर में जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. माने कई सारे आर्टिस्ट जो शायद थोड़े स्टैब्लिश्ड हो गए, जिन्होंने किसी तरह से आई एम श्योर लॉट ऑफ स्ट्रगल इन देयर ओन लाइफ बिल्ड रेजिडेंसीज. जैसे आदिशक्ति की हम बात कर रहे थे, राइट? वीना पानी चावला हैज स्पेंट हर एंटायर लाइफ टू बिल्ड दैट ब्यूटीफुल स्पेस. और ऐसे बहुत सारे रेजिडेंसीज हैं. उस पार रेजिडेंसी है यहाँ पर अलीबाग के पास में. तो वो लोगों की मेहनत से उन आर्टिस्ट ने बिल्ड की है. एंड इफ़ यू टॉक टू देम, यू जेन्युइनली हैव एन आइडिया यू वांट टू बिल्ड, दे विल कोलैबोरेट विथ यू. उनको बेसिक खर्चा निकालना कई बार होता है. ऑब्वियसली बात है, दे ऑल्सो वांट टू सस्टेन एंड रन. तो ऐसी बहुत सारी रेजिडेंसीज इंडिया में हैं जहाँ पे अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं कुछ शो बनाने के लिए, आप उनसे बात करेंगे, दे विल सपोर्ट यू. कम स्टे हियर फॉर 15 days, कम हियर स्टे फॉर 20 days. यहाँ आपको स्टूडियो है, माइंड स्पेस है, खाना है, आप बनाइए अपना काम. तो सबसे बड़ा मुझे लगता है इंडिया में जो थिएटर चल रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए चल रहा है, मुझे लगता है सर, कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से. हाँ, उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे कैसे पता चले कि आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है. ये एक बड़ा सवाल. पहले मुझे लगता था कि यार क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, पर वो इंसान आप पे कैसे ट्रस्ट करे कि आप सच में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं. सो दैट गैप इज देयर. वो एक बार क्रॉस हो जाता है तो आपको आर्टिस्ट सपोर्ट मिल जाता है रेजिडेंसी के लिए. अभी भी लाइफ सस्टेनेंस के लिए कुछ नहीं है. लाइफ सस्टेनेंस के लिए यूजुअली ऐसा होना चाहिए कि जो बाहर देखा है हमने कि गवर्नमेंट के ग्रांट्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल ग्रांट्स होते हैं, वो हैं इंडिया में बहुत छोटे हैं, बहुत कम हैं. वो भी आपको प्रोडक्शन के लिए देते हैं कि आप अगर कुछ प्रोडक्शन बना रहे हैं तो. करेक्ट. एक्सपेरिमेंट्स के लिए कोई नहीं देता. एंड बहुत सारा तो मनी दैट वाज इन द लिबरल आर्ट्स एंड व्हाटएवर, वो अब कट भी हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से भी. दैट इज, यू नो, कट डाउन सब्सटेंशियली. पेट्रन्स ऑफ आर्ट्स भी कितने ही हैं एंड वो कितना सपोर्ट करते हैं और कितनी पॉपुलेशन है हमारी. सो इवन इफ दे सपोर्टिंग say 100,000 or whatever, वो number इतना बड़ा है that the people who want to actually get that, you know, and also access, right? Access is such a big thing. Where do you begin? How do you get into those cliques and how do you kind of have those people as your mentors? So anything that you have to say on access? I mean, यहाँ पे तो ये दूसरा पार्ट है. एक गेम तो हो गया आर्टिस्ट सपोर्टिंग आर्टिस्ट. सेकेंड इज यू फिगरिंग आउट योर वे टू लिव थ्रू लाइफ. और वो आपको हर किसी को अपना स्ट्रेंथ ढूंढना है कि यार मैं ये कर लूँगा. जैसे यहाँ जब से मैं बॉम्बे आया तो देख रहा हूँ लोग एड्स कर लेते हैं, इधर उधर 10 चीज़ें करके आप किसी तरह सस्टेनेंस आप अपने एफर्ट पे कुछ फिगर आउट कर लें. तीसरा डेफिनेटली है इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑल. तो अभी फिलहाल जो मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैव पॉप्ड अप इन इंडिया. लॉट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैज स्टार्टेड पुटिंग इन मनी इन द आर्ट्स. लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, थिएटर फेस्टिवल्स हो रहे हैं. नाउ these are two, there is a good and the difficult part to it. Good is कि जब आप वहाँ परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने रिसेंटली दिल्ली में परफॉर्म किया, तो यू गेट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी. आपने यहाँ बॉम्बे में NMSCC में परफॉर्म किया है, NCP में, तो आपको एक चंक मिलता है जिससे आपको पता है यार ये महीना सस्टेन कर सकते हैं आप, या 2 महीने आप सस्टेन कर सकते हैं. तो एक चंक ऑफ मनी आ जाता है. पर मुश्किल पार्ट ये है कि आप वहाँ कैसे परफॉर्म करेंगे. क्या आपको वो लोग जानते हैं तो देंगे, तो कोई क्यों आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, इज़ अ बिग पार्ट. जैसे बैंगलोर में एक बैंगलोर हब्बा भी शुरू हुआ है, पिछले साल हमने वहाँ परफॉर्म किया था. वेरी जेनरस क्यूरेटर, शी वॉज रियली माइंडफुल अबाउट हाउ टू डील. वो भी बहुत कम है इंडिया में. तो वो भी दे आर ऑल्सो पेइंग यू कि चलो आपका जो भी वर्थ है. तो ये पॉपअप आ रहे हैं और ये मुझे अभी शुरुआत हुआ है ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलना. द डिफिकल्ट पार्ट इज़ वाई वुड समथिंग गेट कॉल्ड इन अ फेस्टिवल इज़ अ बिग पार्ट, क्योंकि वो बहुत सारे हैं. और एक साल में अगर आपने 5 या 7 फेस्टिवल्स में परफॉर्म कर दिया तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर यू टू सस्टेन. वहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि ना नेटवर्किंग हो जाती है. किसी ने किसी को बोला, उसने उसको बोला, उस पर चलता है सारा खेल. और कई सारा खेल इस पर भी चल रहा होता है कि कौन सा शो पॉपुलर है, कौन से शोज़ में सेलिब्रिटीज़ हैं, कौन से शोज़ में. जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर फेस्टिवल्स जो इंडिया में हो रहे हैं काफ़ी सारे बॉम्बे के प्रोडक्शंस हैं. एंड आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट.
दो आई हैव जस्ट शिफ्टेड टू बॉम्बे, बट क्योंकि मुझे पता है कि यार वहीं पे बहुत इंटरेस्टिंग थिएटर हो रहा है, आसाम में भी बहुत एक्साइटिंग थिएटर हो रहा है. Why is the entire festival filled up with all the Bombay productions? Which is a little concerning thing for me. But I understand कि organizers चाहते हैं कि अच्छा celebrities आएंगे तो tickets बिकेंगे तो वो एक I think negotiation अभी चल रहा है. I think वो settle down होगा. या तो festivals बंद हो जाएंगे या तो they will mature to find a way through it. But also we are as a culture are very celebrity obsessed, no? I mean in films also it's the same status for films like Homebound or even Sabarbonda and films like that which are जो बनी है जो मतलब जो फिल्में बननी चाहिए वो एक्चुअली बनी हैं about topics that you know are not as mainstream as we would you know want them to be, but then a film like made on like Dhurandhar for that matter, I've not seen any of these films honestly, but if I was excited to see something, I would want to see Sabarbonda. You know, I missed the opportunity to see it, but a film like Dhurandhar is doing what it is doing, right? Because it is again Masi, that appeal is there, and no shade on any film. I think all of the films are wonderful films in their own right, but the idea that I think audience को लगता है कि हम शायद यहाँ पे जाके ये थोड़ा सा आर्टसी हो गया ज़्यादा, थोड़ा सा ये हो गया पैरेलल सिनेमा हो गया, वो सारे एक नोशंस हैं. और इतनी आबादी के बाद भी it is very strange that people don't want to experiment and they don't really want to get out of their comfort zone. I mean for me it's very clear, also I am a writer and I'm from the film world, तो मैं तो obviously अपने lens से देखती हूँ, but for me it is it exciting enough for me? You know, give it a chance. You know, that chance. Give it a chance का risk लेना. Maybe you fail, and I failed also. I've gone to some plays, I've gone to some films thinking, you know, they'll be great. But that is the human experience. You know, this entire thing that we ride from high to high is also कि अच्छा ये hit film है, सब कुछ अच्छा होगा, entertaining होगा, एकदम मसाला, तो ही मैं जाऊंगी. But फिर I'm not experiencing that. What does it mean कि मुझे पसंद क्यों नहीं आ रहा? And you know, coming back and taking a step back and saying यार इसमें क्या गड़बड़ थी, क्यों पसंद नहीं आया? But हमारे पास वो फुर्सत ही नहीं है. वो adrenaline और जो वो serotonin जो चाहिए होता है लोगों को from you know this kind of material, whether it is films or theatre for that matter, I think that is the reason that you only read the reviews, you only look at अच्छा ठीक है ये कास्ट है तो मैं जाऊँ, क्योंकि ये तो guaranteed है कि मुझे एक लेवल का सेरोटोनिन मिल ही जाएगा. ये एक्चुअली गारंटी वाला मामला थोड़ा ट्रिकी है. हाँ. Nothing is guaranteed in life anyway. Right. नहीं, but people want it. I mean people want it. They think they're safe. Right. लेकिन फेस्टिवल्स का एक सिंपल सा मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि देयर कंसर्न इज राइट कि पता नहीं ये शो काम करेगा. How will they sell the tickets? How will they sell the tickets? Or is it the right? तो उसमें ये एक अच्छी चीज होने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काफी सारे क्यूरेटर्स वो एक्सपीरियंस थिएटर वालों को ले रहे हैं, राइट? तो उससे क्या होता है कि वो जो क्यूरेटर हैं they are being mindful now. So instead of just the organizer organizing a festival, कई बार कई सारे festivals में curators ले रहे हैं. Right. Now the struggle is, has that curator seen your work? Not seen your work? Are you in touch with them or not in touch with them? Are you a person who would like to be in touch with them? जैसे मैं नहीं बनाना चाहता एक friendly relationship with someone क्योंकि मुझे shows मिल जाएंगे. I just feel it's not the kind of person I am. तो क्या होगा? फिर वो चांस पे ही रहेगा हमेशा कि भाई क्योंकि माया को लोगों ने देखा तो आप स्टैनफोर्ड में भी बुला रहे हैं क्योंकि लोग किसी ने देखा तो किसी ने बुलाया. इट इज़ व्हाट इट इज़. नया है, क्या लोग उसे देखेंगे? देख कर बात फैलते फैलते अपना टाइम लगेगा और उसको स्टैब्लिश करने में बिल्ड करने में टाइम लगेगा, विच आई हैव एक्सेप्टेड नाउ. अर्लियर आई वॉज फाइटिंग कि क्यों मैं इतनी मेहनत करके नाटक बना रहा हूँ, क्यों नहीं देख रहे. अब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे नाटक बनाना है और करना है. जब लोग देखेंगे तब देखेंगे एंड देन इट विल रीच वेयर इट विल रीच. So नियति भी कुछ होता है. That is all you can live on at least at this moment. You can do your work and at then, this moment. Right. Yes. I have another question, Akshay. The fact that in this theatre world, of course, in the film world, if you have a internationally acclaimed film, it is a big deal, right? So you get, I don't know how much it gets you work or not, but obviously आपके बारे में बात की जाती है, you represent the country and all of that. Somewhere when you were coming back to your village और आप खोजाराम जी से मिले, I'm taking you back to the first thing that we discussed, the one story. क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा था कि ये सब कहीं छूट रहा है या ये सब एक तरफ है? Is it also related to the glamour of going outside of there is something ना, हम सब अभी भी उसी तरीके से उसी लेंस से शायद देखते हैं कि बाहर जाना अभी भी बहुत ही एस्पिरेशनल है, right? So did that kind of affect you, that or did you carry that also with you, और ये भी आ गया तो वो एक सब मिल के you are becoming the person you are becoming as an artist, या you felt like you're leaving something behind there to explore this? What did that feel like? You mean
वहाँ रहने का, वहाँ काम करने का? Anything. Like, I'm sure you would have, did you have opportunities there? I had enough opportunities. I Exactly. was offered some sort of visa. Right. And I'm like, पर This is which city or country? New York. New York. Right. Yeah. Exactly. तो So you're और मुझे ये भी पता, मुझे क्योंकि वहाँ ट्रेन किया है आपने, तो आप मुझे समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ मैं कैसे बैठ सकता हूँ, Navigate करो life नेविगेट को, करता हूँ, right. क्योंकि वो थोड़ा स्लाइटली स्ट्रक्चर्ड है, आपको एक तरह से बात करनी है, आप एक तरह से प्रपोजल लिखना है, Right. आप सेटल हो सकते हैं। पर क्योंकि खोजाराम जी वाला एक्सपीरियंस था, right. इट वाज सेइंग कि अगर तुझे जो भी बनाना है, इट्स बेटर कि आप वो एक्सपीरियंसेस लीजिए, अगर वापस कभी जाना होगा तो बाद में सोचेंगे, पर इज दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट यू शुड गो बैक, इज व्हाट आई वाज फीलिंग वेरी स्ट्रांगली। फिर मैं उस तरह का नाटक बनाता, मुझे लगता है, अगर मैं वहीं रहता, क्योंकि मैं वहाँ बहुत सारे नाटक देखे, कुछ किए भी, तो समझ में आया कि अच्छा ये एक तरीका है, और उस तरीके में रहते रहते आप सिस्टम में कहीं पहुंच सकते हैं। Right. वो बहुत क्लियर था एक्चुअली, वो इतना क्लियर था कि मुझे नहीं करना था, मुझे बहुत क्लियर है, आई नो इफ आई पुट आइडेंटिटी, इफ आई मिक्स दिस विद दिस, I will be able to put this out as a proposal. But that's also the programming for a lot of festivals. Yeah, तो film exactly. festivals की भी वही है कि अगर आप एक वो क्रैक कर लो कि ऐसे ऐसे, और also I think because they've done it in a very systematic way, वो बहुत रास्ता ABCD जैसा, शायद, मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं गई उस रास्ते से, जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, उन्होंने वो क्रिएट किया है, राइट? इंडिया में अभी भी बहुत ही, एक तो स्ट्रगल है, वो तो एक साइड है, बट ऑल्सो इट्स ऑर्गेनिक एंड इट्स स्टिल रॉ। सो इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? एग्जैक्टली, वो इतना क्लियर था रास्ता कि मुझे कुछ बेसिकली ये करना है। और मैंने देखा काफी सारे थिएटर आर्टिस्ट जो इंटरनेशनली काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट इन सम वे और द अदर इज ऑल्सो काइंड ऑफ अलाइनिंग to a more international narrative, to a more internationally acceptable thing. Now, maybe they naturally align with that narrative. They are not pretending to align with it, which is great. तो वही मुझे था कि यार मैं अलाइन नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं रहना चाहिए, और इसलिए भी मैं वापस आ गया। और यहाँ के अपने स्ट्रगल हैं, ऑब्वियसली यू लुक फॉर नेम, यू लुक फॉर फेम, यू लुक फॉर पीपल रिकॉग्नाइजिंग यू, नॉट लाइक नॉर्मल ऑडियंस, जस्ट थिएटर की जनता, जो कि मुझे नहीं लगता मुझे अभी भी मिला है, मेरे पास है। और अब एस्पिरेशन हमेशा होता है कि यार लोग जाने, मेरा काम देखने आए, ये लोग काम देखने आए, वो लोग काम देखने आए, पर आई डोंट थिंक आई हैव दैट, आई डोंट थिंक आई हैव अ वे टू गेट देयर। पर हाँ, but you know your alignment, I am finding that alignment. I and you know what's at your core. I think I know. Yeah, and that will be your North Star. That will guide you. Yeah. That will guide you. That will find its ways, is the belief. It shakes, to be honest. I think. I have not won any award. There is nothing for me to put out saying, oh देखो मैं critically acclaimed हूँ, मैं फलाना हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अभी जो विनोद कुमार शुक्ल जिनकी परसों डेथ हुई, एक्चुअली उनको मैं पिछले 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे ये समझ में आया कि हाँ यार, जो आपने कहा why did you start, वो एक्चुअली जब मैं उनको देखता हूँ कि उनको अभी जाके अवार्ड मिला है, अभी गुजरने से कुछ वक्त पहले, वो अपना काम कर रहे हैं, और आप इसीलिए तो करने आए थे, राइट? हाँ, आपके एस्पिरेशंस चेंज हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स चेंज हो सकते हैं, आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन कर सकता है, जो आपका एफर्ट है आपको डालना है, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू आंसर, बिकॉज इट्स यू हैव डिजायर, बट यू ऑल्सो आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स समथिंग दैट पुल्ड यू बैक, जो आपके अंदर है, भीतर की एक आवाज़ है, जिसे हम सिक्स सेंस बोलते हैं, या इंट्यूशन बोलते हैं, या जो भी बोलते हैं, विच आई थिंक is the North Star for, or should be the North Star for every artist in that sense. क्योंकि अगर आपने वो खो दिया तो फिर तो आप बस भीड़ में सबकी तरह या तो बनने की कोशिश कर रहे हो, या वो वैलिडेशन सीख करने के लिए काम कर रहे हो। एंड आई थिंक जो आप कह रहे थे वहाँ पे खोजाराम जी की मुझे एक बात है कि वो डिटैचमेंट जो है जर्नी से, राइट, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फैक्ट दैट मैंने भी कोई अवार्ड नहीं जीता है, और मैंने कभी एक्टिवली सीख भी नहीं किया है, यू नो, टू विन और टू एस्पायर टू विन। It's not been in my vision board ever that winning an award is, I think like you, for me it's also pure validation. कि अगर आसपास के राइटर्स ने बोल दिया क्या लिखा है, तो मुझे लगेगा, आई मीन ऑफ कोर्स मास तो वो होता ही है, बट मेरा काम भी ऐसा है, स्क्रीन के लिए लिखती हूँ तो डायरेक्टली जनता नहीं पढ़ रही है, दे आर नॉट, आई एम नॉट अ नॉवल राइटर हु, यू नो, आई डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू एन ऑडियंस. I am dependent on an entire process and what is being translated, what my intention was. वो भी एक जर्नी है समझने में कि मुझे कभी शायद किसी ऑडियंस मेंबर से नहीं सुनने मिलेगा अरे क्या लिखा था, मे बी एट सम पॉइंट इन माई लाइफ, बट आई थिंक आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट प्योर वैलिडेशन फॉर द फैक्ट दैट फेलो राइटर्स टू से oh what an amazing writer you are. But that is not the driving force and that is not why I am writing, right? So I am also doing it because it's feeding my soul, it is feeding me. And I think वहाँ पे
you know, beautiful thing that Khoja Ramji said कि मैं कौन ही हूँ और मैं क्या ही हूँ. I mean, I think that's what he wanted to say, that I'm not saving anything, I'm not taking anything forward. You want to talk a little bit more about the struggles, about the low points, about any of that, since you went into that zone? I'm asking you this question. लो जोन पीयर वैलिडेशन तो है ही है, डेफिनेटली. आई मीन नो डाउट अबाउट इट कि ऐसा लगता है कि लोग देखें, एटलीस्ट अपने साथ वाले देखें. अच्छा लगे बुरा लगे एक अलग बात है, पर वो चर्चा हो उसके ऊपर वो नहीं मिलता है. एक्सेप्टेंस आई थिंक बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार आप अगर किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो आप यू आर ऑल्सो गिविंग अ पावर इन सम वे. दैट आई फील वेरी स्ट्रांगली. हमारे यहाँ पे हो सकता है ये अराउंड वर्ल्ड हो कि एक्सेप्टिंग समवन इज एक्चुअली गिविंग अ पावर एंड दैट पीपल डोंट वांट टू डू. सो अगर किसी को आपका काम ठीक भी लगा है तो भी शायद दैट विल नॉट गेट एक्सेप्टेड. दैट रियली फील्स वेरी लो. लो फीलिंग इज ऑल्सो अबाउट मनी. लो फीलिंग इज ऑल्सो अबाउट वर्क विच जस्ट गेट कैंसल्ड, क्योंकि आप पॉपुलर सेलिब्रिटी या इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट नहीं हैं. इस साल 7 एग्जिस्टिंग वर्क जो थे जिसके लिए मुझे मिल गए थे वो काम दिसंबर जनवरी में, वो कैंसिल हो गए. एंड ऑर्गेनाइजर्स वर जस्ट फाइन विद कैंसिलिंग इट. मतलब एक ऑर्गेनाइजर में नाम नहीं लूँगा, वो स्कूल है, they are cancelling it like 2 weeks before the time, and I'm like come on, and they're like sorry we couldn't do it. और वो एक के बाद एक काम कैंसिल हो जाना, it really hit me hard. I can imagine, yeah. And I'm like अच्छा, I was relying on it. मैंने पहला अपना पूरा first half year का इसलिए रखा था कि I will do my creative stuff. I made like 3 shows in first half of this year. But I was totally like okay, second half of the year will take care of house. But all of it got cancelled. But ये across है, पता है, even in our industry it's pretty similar. Like cancel, show ना बनना, show लिखने के बाद ना बनना, उसका क्या fate है. They're all governed by commercial decisions, and I understand commerce is a part of, at least film industry का तो बहुत बड़ा part है. But yeah, the hit that an artist will take or a writer will take, there's nothing that you know we can. और आप क्या करो? यही अगर मुझे लगता है कि अगर मैं established artist होता तो कोई ऑर्गेनाइजर नहीं करता, और करता उठा भी के बस चलते रहना है हमें. करते भी अगर तो they would be much better at it. तो अभी ये बहुत recent incident है, इसलिए it's still hitting me hard. And I'm like मुझे then I have to find a way to make myself independent enough कि कल को ये 7 क्या 15 काम भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि मुझे एक प्ले में लिख रहा हूँ, उसका नाम अभी टेंटेटिवली इन प्लेस ऑफ है. मैं उसके 2 ड्राफ्ट लिखे हैं. And I was like, okay, ये काम करूँगा, जनवरी तक I will finish, and I really want to make that show. Right now I've just kept that show aside. मेरे पास पैसा ही नहीं है अभी कुछ करने के लिए. So I'm like, okay, let's just get somewhere with money. And this is a constant है हमारी life में. Problem ये कि constant क्यों है? I mean, if it is transitory, I'm okay with it. I can live a phase with it. Yeah. But because it is like, it feels like, okay, this is going to repeat. No, I get it. And ये हम सबकी कहानी है जो freelance करते हैं या जो artists बनने की कोशिश करते हैं. मैं तो ये भी नहीं कहती कि मैं art कर रही हूँ. I just feel like even as a freelancer, it's such a big deal. And जो लोग इस industry से नहीं है या हमारे इस circle से नहीं, उनके लिए समझना इतना मुश्किल है. आप अपना मानसिक संतुलन सोचिए ना, आपको पता नहीं आपका पैसा कहाँ से आ रहा है हर महीने. And you're doing this because this is the only thing you want to do. There is nothing else, right? But you're still trying everything, and then sometimes, you know, people ask me this question, but maybe you're not trying that. And I'm like, listen, you have no idea the kind of things I have tried and done and everything, and I'm still willing to do it at this point also. But I feel you. And I think if someone's listening who's from the creative field will understand, and if not, the others will be educated, that it is so difficult to pick yourself up again. And you know, it's a constant cycle of like just that वो जो आपका, and आपने जो चीज़ बोली ना established होता है. I've worked with some of the best and most established people in this country. It's the same for them. The blow is the blow. Of course, maybe monetarily that is not a blow for them because they may be settled in their careers and they may have that. But वो जो एक cancel होने का एक वो होता है ना, और उनकी life में मैंने किस्से सुने कितने cancel हुए हैं, कितना कुछ नहीं work out किया है. But their entire thing is that we have still reached where we had to reach probably, or even better. Because you just keep at it. So in your lowest, you know, there are phases where people have it for 7 years at a stretch. That you know, वो low चल ही रहा है, आप निकल ही नहीं पा रहे हो. And actually it's true, जितना आपका high होगा ना, उतना आपका low भी होगा. तो अभी जो हमारे high low चल रहे हैं वो because थोड़ा सा high होता है फिर एक low आता है. उनके ना जब high भी इतने ऊंचे होते हैं कि आप इतने establish हो गए हो कि वो lows भी वैसे होते हैं. So I think it is constant. You asked another question. क्या करे इसका? I think unfortunately I have no answer for it. There are lots of answers and also there's no answer.
It's a terrible state and I think it's getting worse. And इसीलिए शायद इसके बारे में जितने लोग बात कर रहे हैं वो उतना कम है, क्योंकि ये पता चलना चाहिए लोगों को. I always tell people, go and try something new, you know, push yourself out of your comfort zone. Then don't ask questions why artists are poor in the country or why art is not getting representation or why we're not going back to our roots. Like people who are sitting here and doing that, there is no one to support them, right? And this is not a pity call. This is not something we are very proud of, you know, what we're doing and where we're coming from and all of it. But yeah, it's a very, very tough process. But I don't want to end on this note. I want to ask you one last question. Is there any advice that you want to give to the younger people who are joining? और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थिएटर अब और लोग आ रहे हैं. Yes, बहुत क्योंकि आई थिंक यही रेवोल्यूशन है. दिस इज वी वाला रेवोल्यूशन. मतलब मुझे लगता है थिएटर बहुत ही प्यारा मीडियम है. मैंने सिर्फ थिएटर किया है तो मुझे थिएटर के बारे में पता है. और मुझे लगता है कि देयर इज नो वे पीपल आर नॉट गोइंग टू कम टू थिएटर बिकॉज थिएटर एक्सपीरियंस इज थिएटर एक्सपीरियंस. Nobody can defeat it, and it's just beautiful. Just watching a human being in front of you breathing is an experience we are missing. Right now, अब कितनी बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ मिलते हैं, नहीं मिलते हैं. और थिएटर एक वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप एक इंसान को जीते हुए सांस लेते हुए देखते हो. तो मुझे तो बहुत होप है. मतलब ये जो हमने लो फेज की बात की, उस बात को 2 महीने हुए हैं और उसमें देयर इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैव वर्कड आउट. इनफैक्ट इट हैज़ मेड मी मोर स्ट्रॉन्ग कि यार भाई अभी तो बहुत एक्सप्लोर करना है. देयर इज सो मच मोर विच यू शुड एक्चुअली पुट योर एफर्ट इन टू. तो आई थिंक मेरा एडवाइस यही है कि इफ़ वी कैन मेक आवरसेल्व्स, ईच इंडिविजुअल पर्सन जो भी है, इंडिपेंडेंट इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, फाउंडेशनल इनफ, देन कुछ मतलब है. क्योंकि अदरवाइज बहुत ही कियोटिक जिंदगी है ये. थिएटर में तो बहुत कियोटिक, ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है. ग्राउंडिंग, और उसमें टाइम कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है. और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि शुरुआत में वीना पानी चावला जैसी मैम थी, कन्हैयालाल सर जैसे टीचर थे, मेरे बाहर के टीचर एलन बारनी, उन्होंने सिर्फ दे ऑल टोल्ड मी टू स्टे ग्राउंडेड बिकॉज दे हैव सीन अ लॉन्ग लाइफ इन द आर्ट्स वर्ल्ड. दे सेड पुट मोर एफर्ट हियर राइट नाउ. Can you define being grounded? What does it mean in theatre terms or in your terms? Grounded is just this feeling that you can feel it rather than think about the craft. कि आप आज अगर अपने क्राफ्ट को, जो भी क्राफ्ट कहते हैं, हमारा काम क्या है, क्राफ्ट क्या है. अगर आप थिएटर में एक एक्टर हैं तो क्राफ्ट क्या है कि आप स्टेज पे खड़े हो सकते हैं, क्या आपको एक कंटेंट दिया जा सकता है, वो डिलीवर कर सकते हैं. द मोमेंट यू फील, नॉट थिंक, मोमेंट यू फील दैट आई कैन होल्ड माई क्राफ्ट, आई कैन डू द जॉब even in the lowest of my times. In fact, जब ये सब कैंसिल हुआ था, we were traveling from Delhi to Bombay for the show, and I called Anita. I said, देखा email, उसने बोला देखा email, सारा सब कैंसिल हो गया है, and we had a show in 3 days. Can you still go on stage and do the show? And we did. We had a really, really fantastic show, and I think that is what I mean by grounding. कि अगर आपने इतना कर लिया है, चाहे कैसे भी हो, नेचुरली हो, ट्रेनिंग की वजह से हो, पीयर्स की वजह से हो, आपके अनुभव की वजह से हो, द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग कि आप जो भी करते हैं उसको आप पकड़ सकते हैं अपने हाथ में, एक तरह से छू सकते हैं, दैट इज ग्राउंडिंग. और उसके लिए आपको एफर्ट डालना है. तो मेरा ओनली एडवाइस टू माई सेल्फ एंड टू एवरी वन एल्स इज, आई थिंक वी शुड जस्ट इन्वेस्ट इन ग्राउंडिंग, फाइंडिंग आवर रूट्स एंड देन स्टे विद इट, एंड देयर विल बी डेज which will come and go and it's fine. Wow. It's part of experience. Fantastic. Thank you so much, Akshay. Thank you. So Akshay, thank you so much for sharing that one story with all of us today. बहुत ही I think खूबसूरत कहानी आपने शेयर की. It was I could imagine what you were feeling in that moment while you were in that room with Khoja Ramji, and you know, many thanks and a lot of gratitude to him for being such an integral part of, you know, your journey. And mark my words, guys, I've seen this guy perform. He's going to break it in the, when I do not know, क्योंकि वो सब नियति होती है, but कुछ चीज़ें होती हैं लिखी हुई और वो हो जाती है. But I think I've not seen a more hardworking person than you, and just so the energy, and I know what it, you know, means to bring that energy to every conversation that you have. It's not just, you know, on stage obviously phenomenal. So अपना time आएगा अक्षय for sure. But एक चीज़ I want to leave you guys with it, that, you know, it keeps coming back to me that why you begin, right? And this is not just for artists, this is not just for writers, for theatre actors, directors, but even for you in your life, if you're stuck somewhere and अगर आप जाके बस खुद से ये सवाल कर लो कि why am I here? Why is this happening? Why did I choose this? Why did I choose this person? Why did I choose this career? And if you have that answer, you'll get that answer. Sometimes, you know, वो जवाब बहुत जल्दी नहीं आता.
आपको साइलेंस में बैठना पड़ता है, तो आप बस बार बार जाके चुपचाप बैठिए, आपको आ जाएगा वो जवाब। मैं भी बहुत सारे सवालों के जवाब फिलहाल ढूंढ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइफ कभी भी सॉर्टेड होती है पूरी तरीके से, बट आई थिंक इफ़ यू जस्ट आस्क योरसेल्फ दैट, ऐसी एपिफनीज होंगी ना, और वो ऐसे टाइम पे होगी जब आप सोच भी नहीं रहे होगे। लाइक इट विल हैपन इन मोमेंट्स वेयर you have completely surrendered to the process of figuring out why you're doing what you're doing. And yeah, I think that was what my understanding from today's, your journey, your one story and this entire conversation that we had. अगर आप एक चीज़ कर सकते हैं हमारे लिए, तो please, 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 please look up what is happening in your local theatres and एक play देख के आइए. Push yourself out of your comfort zone. वो फिल्म भी देखिए प्लीज़, मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ तो मैं बोलूँगी जो फिल्म देखना चाह रहे हैं वो भी देखिए, बट एक इस महीने, अगले महीने जब भी आप ये देख रहे हैं, go and watch one play and see what it does to you on a human to human level. Not anything else. I'm not asking you to say अच्छा था, बुरा था, कैसा था, वो सब qualitative बातें हैं, but human to human level में आपको कैसा महसूस हुआ पहली बार अगर आप जा रहे हैं, और अगर आप जाते हैं तो great. This is one more chance to go see somebody perform live in a theatre. The experience is just out of this world, right? So I think with that, we come to the end of this episode of One Story with Akhtar Pawar. Akshay, thank you so much once again. Thank you for coming and sharing your one story here with us. And we wish you lots and lots of good luck and lots of great shows, great running shows, all of that. Thank you Akhtar and team. I mean, this is wonderful. मुझे बहुत मज़ा आया बात करके. Thank you. Thank you. Bye-bye. यार आई एम इम्प्रेस्ड, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और मुझे अभी सुन पा रहे हैं, इसका मतलब आपने पूरा एपिसोड अच्छे से सुना और देखा है। एंड अगर ये कर ही लिया है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे एक क्लिक कर दीजिए। एंड अगर ये एपिसोड सुनते हुए आपको किसी की भी याद आई हो, या किसी दोस्त की आपको ऐसा लगा हो कि ये वन स्टोरी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होगी, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करो। और अगर ये दोनों काम कर रहे हो तो यार फिर तो सब्सक्राइब कर ही लो। वन स्टोरी विद अख्तर पवार। थैंक यू।